بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ کا لائیو فیس بک. ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں وابڈا ٹاؤن گجرانوالہ میں، جہاں پہ 2022 کے یہ الیکشن یہاں پر جاری ہیں، جس کی مختلف اپڈیٹس ہم آپ کو پچھلے دنوں دیتے رہے، جن کی الیکشن کمپین کے دوران ہم نے جو بھی اپڈیٹس آتی رہی ہم آپ کو دیتے رہے. آج وہ الیکشن کا دن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گرد و نواح میں الیکشن کا ماحول ہے، دونوں سائڈز پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں. تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ یہاں پر دو گروپ یہاں پر مد مقابل ہیں. ایک جو ہے وہ اتحاد گروپ ہے اور دوسرا اتفاق گروپ ہے. ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ بڑا سخت مقابلہ ہے. مقابلہ اس طرح سے کہوں کہ جو اتحاد گروپ ہے وہ پہلے سے یہاں پر صدارت پہ ہے، یہاں پر ان کی رجیم تھی، لیکن اس کے بعد یہاں پر ابھی جو چونکہ یہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے اور یہاں پر ان کے ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن انہوں نے یہاں پر اپنا آ کر ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا ہے اور وہی الیکشن کروا رہے ہیں. الیکشن کا سلسلہ کافی دنوں سے اسی سال کے جو آغاز سے ہی جاری تھا اور الیکشن آفٹر اپلیکیشن پہ اپلیکیشن ہوتی چلی گئیں اور الیکشن جو ہے نا وہ آگے سے آگے ہوتا چلا گیا. اور آخرکار یہ وہ دن آ گیا جب یہ الیکشن ہونا تھا. رات ایک بدمزگی ہوئی جب دونوں جو فریق تھے وہ اپنے الیکشن کے ڈے کے لیے کیمپ لگا رہے تھے تو دونوں کے درمیان ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، ان کے آپس میں تھوڑی سی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد دونوں کی طرف سے اپلیکیشن ہوئی. کچھ لوگ زخمی بھی تھے، انہوں نے اپنی MLC کے بعد اپلیکیشن تھانہ پہ بھی موو کی. اسی کی وجہ سے پولیس کی سیکیورٹی بہت سخت ہے یہاں پہ، اور یہاں پر تقریباً 120+ لوگ جو ہیں پولیس کے اہلکار یہاں پر تعینات ہیں. SHO صدر جو ہیں یہاں پر خود موجود ہیں. پولیس کی 2 ریزرو یہاں پر تعینات کی گئی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا محلِ وقوع اور ووٹرز کی تعداد آپ کو بتاتا چلوں کہ 3,360 ٹوٹل ان کے مرد جو ووٹر ہیں ان کی تعداد ہے اور 800 کے قریب جو ہے نا وہ خواتین ووٹر ہیں. اس طرح 4,160 کے قریب ٹوٹل ان کے ووٹرز کی تعداد ہے. ابھی تقریباً 2 بجے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق تقریباً 1200 کے راؤنڈ اباؤٹ میں وہ ووٹ ہیں وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. اندر کی میں آپ کو تھوڑا سا بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر اندر جو ہے وہ 9 بوتھ بنائے گئے ہیں، جن میں سے 7 بوتھ ایسے ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں اور 2 بوتھ ایسے ہیں جو کہ خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جہاں پر یہ لوگ خواتین و مرد جو کہ وابڈا ٹاؤن کے ممبرز ہیں وہ یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اس کے بعد دونوں گروپوں کی طرف سے 4 الیکشن کے اندر جو اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اندر پولنگ ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے آنے والے معزز ممبران کو ویلکم بھی کرتے ہیں، ان کی لسٹ کے اندر ٹک مارک بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی ڈبلنگ نہ ہو سکے، کوئی دوسرا اور باہر سے آنے والا کوئی جو ہے نا وہ ممبر یہاں پر ووٹ کاسٹ نہ کر سکے. ابھی میں بات کروں گا مختلف لوگوں سے، دونوں کے قائدین سے، دونوں کے ممبران سے، امیدواران سے، چاہے وہ صدر، سیکٹری اور MC ممبر کیوں نہ ہو، تو اسی کے سلسلہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. ابھی میرے ساتھ انفارچونیٹلی میرے ساتھ اتحاد گروپ کی طرف سے رضوان چیمہ صاحب موجود ہیں اور یہ ہم نے آپ کو ان کی وہ تقریر بھی سنائی اپنی الیکشن کمپین کے دوران. بڑے جوشیلے انداز میں یہ اپنے وابڈا ٹاؤن کے لوگوں کو یہاں پہ اپنے گروپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی، رات کو ایک بڑی بدمزگی ہوئی، اس میں آپ کا نام بھی اپلیکیشن میں موو ہوا، یہاں تک کہ دوسرے گروپ کے جو امیدوار باعث صدر ہیں انہوں نے تو بڑا آپ کے اپلیکیشن میں نام بھی دیا اور آپ شاید جوشیلے ہیں اس وجہ سے یہاں آپ بڑے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، شاید اس وجہ سے تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جی فار گجرانوالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وابڈا ٹاؤن کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے لمحہ بلمحہ رپورٹ عوام کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. تو آتا ہوں اب آپ کے سوال کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ وابڈا ٹاؤن جو ہے نا تقریباً 22-23 سال مجھے بھی یہاں پہ رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. کبھی اس طرح کا کوئی بھی ایشو یہاں پہ نہیں وابڈا ٹاؤن کے اندر بنا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اب جو گروپ ایک بنایا ہے، لیکن شاید انہیں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں کہ وہ عوام کے پاس کم جاتے ہیں. وہ درخواست بازی، جھوٹی درخواستیں، پراپوگنڈا، بینر لگانا، میں سمجھا ان کا وتیرہ بن چکا ہے. یہ رضوان بھائی مجھے بتائیے گا کہ آج الیکشن ڈے ہے، الیکشن کی گہما گہمی ہے، پولیس کی سیکیورٹی ہے، آپ بڑے پرجوش ہیں، بڑا چارج ہے آپ کا ووٹر بھی. 3,360 مرد اور 800 خواتین ووٹرز کے ساتھ آپ الیکشن میں کودے ہیں اور بڑی محنت کی ہے آپ نے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شام تک؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جو اتحاد گروپ ہے
उसने बाद या अक्सरियत के साथ उसने क्लीन स्वीप यहाँ पे किया है। और क्लीन स्वीप क्यों ना करे कि उन्होंने लोगों की खिदमत की है, अमली तौर पे लोगों की खिदमत की है। यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के जो निज़ाम है, मैं समझता हूँ जितनी भी सोसाइटी हैं उनके अंदर बेहतरीन जो है वो सोसाइटी जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वापटा टाउन के अंदर नजर आएगा। आपको सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वापटा टाउन के अंदर सबसे बेहतरीन नजर आएगा। आपको एजुकेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं गुजरांवाला के अंदर बेस्ट सोसाइटी के अंदर यहाँ पे 3 दफा फर्स्ट पोजीशन जो है वापटा टाउन फेडरल साइंस कॉलेज के होनहार तलबा ने हासिल की है। जी नाज़रीन, ये थे आपके साथ मौजूद थे रिजवान चीमा साहब। अभी मैं इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से जो है ना वो इत्तेहाद ग्रुप के कुछ कायदीन मेरे साथ मौजूद हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी हैं वो वापटा टाउन सोसाइटी के। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे ये पूछूंगा कि आपने एक बड़ा अच्छा और लंबा टेन्योर वापटा टाउन में गुजारा, आप अपनी खिदमात जो आपने वापटा टाउन के लोगों के लिए पेश की, मेंबरान के लिए, सोसाइटी के लिए, आपने क्या कुछ किया जो लोग आपको वोट दें? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि 20 साल से हम बरसरे इक़्तिदार हैं, जो है ना इसकी वापटा टाउन की खिदमत कर रहे हैं। हमने इधर डेवलपमेंट का नया ट्रेंड दिया, हमने इसके लिए जो है ना वसाइल पैदा किए, इसकी इनकम जनरेट की। जितने हमारे कमर्शियल प्लाट से बेचने की बजाय हमने उन पर कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट किया। इसी तरह हमने शादी हाल हमारा देखें 20 साल पुराना है, लेकिन उसको आप देख के कह नहीं सकते। अगर किसी ने आज तक 10 फंक्शन किए हैं, हर साल नई वीडियो अगर पुरानी देखें तो हर साल ऐसे ही लगेगा जैसे जो है ना नया बना है। स्कूल जब हमने शुरू किया, जब हमारे पास आया तो उस वक्त 1200-1300 तादाद थी, अब 4800 तादाद है। हम बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं और बेहतरीन स्टाफ जो है ना रखा हुआ है। हम ऐसे कोई कमाई नहीं करते, कमाई का जरिया इस स्कूलों को नहीं बनाया। ये हम अपनी आइंदा नस्ल को जो है ना बेहतर करने के लिए ये बेहतरीन जो है ना तालीम दे रहे हैं। 3 दफ़ा हैट्रिक की है हमने वापटा गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन की, और कोई साल ऐसा नहीं है जब पहली 3 पोजीशनों में से हमारी पोजीशन कोई ना हो। तो इसी तरह अगर सिक्योरिटी का निज़ाम लें तो हमारा हर घर कैमरे के आगे है। सारे दावे से मैं कहता हूं कि सारे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई टाउन नहीं होगा जिसमें हर घर जो है ना वो कैमरे की आंख देख रही हो। इसी तरह स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है। ये कभी हो नहीं सकता कि 2 हफ्ते कोई किसी स्ट्रीट की कोई स्ट्रीट लाइट बंद रह जाए। हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर हफ्ते में 2 दिन जो है ना वो स्ट्रीट लाइट चेक होती है, जितने भी फ्यूज होते हैं उन सब को सब चेंज कर दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब। अभी मेरे साथ अगले जो कायद जो कि इत्तेहाद ग्रुप के कायद हैं, चेयरमैन हैं, मैं उनसे बात करूंगा। असलम गुमन साहब सरपरस्ते आला भी हैं इनके। मैं उनसे पूछूंगा कि आप इस सारे जो ग्रुप को लेकर चल रहे हैं तो वापटा टाउन के मेंबरान को थोड़ा सा उन लोगों को भी बताएं कि आपको क्यों वोट दें, वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, कौन सी आपकी काविशें हैं, कौन से आपके काम हैं जो आपके दूसरे लोगों से मुनफरिद हैं, आपकी सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी से मुनफरिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 20 साल से इत्तेहाद ग्रुप का सरपरस्त आला हूँ। मेरी इस क़यादत में ये 5वां इलेक्शन है और हर दफ़ा तमाम बंदे हमारे ही जीतते हैं, एक भी कभी किसी मुखालफ ग्रुप का नहीं जीता। हालांकि हर दफ़ा हमारी अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इसके लिए हमने टाउन का बेहतरीन निज़ाम सारा बनाया हुआ है। पूरे टाउन में आप घूम लें, मुझे कोई सड़क टूटी हुई किसी में छोटा मोटा खड्डा भी दिखा दें तो हम मुजरम हैं। इसी तरह सीवरेज का निज़ाम है, सफाई का निज़ाम है, एजुकेशन का निज़ाम है। हम अपने एम्प्लॉयज़ को खासकर टीचर्स को अच्छी तनख्वाहें देते हैं और अच्छा रिजल्ट लेते हैं। आपने एजुकेशन पे बात की, एहसान साहब ने भी एजुकेशन पे बात की, आपने सिवरेज पे बात की, आपने सफाई सुथराई पे बात की। मैं एक क्वेश्चन करूंगा वापटा टाउन के, और आप जिस जुर्मट में रहते हैं ये एक ऐसा ऑक्टोपस है जहां पे मुहाफिज टाउन वाक़या है, जहां पे वापटा टाउन है, जहां सिटी हाउसिंग है, जहां पे कैनाल व्यू है, जहां पे 4 से 5 सोसाइटियों का एक चुंगल है। यहाँ के लोग जब निकलते हैं सिटी में अपने कामों पे जाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे जो टर्न है, यहाँ पे जो यू टर्न है वो उनके लिए एक वबाले जान बना हुआ है। लोग अपने घर से 1-1 घंटा तक उस यू टर्न पे फंसे रहते हैं। आपने उसका कोई, आपके ग्रुप ने कोई प्लान किया है या कोई आपके माइंड में ऐसा कोई प्लान है जो अपने सोसाइटी के मेंबरान को आप फैसिलिटेट करेंगे? जी,
जो यू टर्न का मामला है, हमने इस पे बहुत स्ट्रगल किया और करते हैं, लेकिन ये यहाँ की किसी सोसाइटी के भी बस के बात नहीं है। ये NHA से रिलेटेड है और सड़क के दोनों तरफ जगह बहुत कम है कि हम अंडरपास बनाना चाहते थे। लेकिन हमने NHA से बात की थी, आपकी तरफ से वाबडा टाउन के मुस्तनसर साहिब साहब आपके एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके साथ हमारी बात हुई। स्टेट 2 के प्रेसिडेंट थे अखलाक भट्ट साहब, उनसे हमारी बात हुई। NHA के गुजरांवाला के डीसी, उनसे हमारी बात हुई। मोटरवे के हमारी बात हुई। इसी यू टर्न के ऊपर हमने पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया था, लेकिन NHA इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि उनका ये प्रोजेक्ट है, ये वो कर सकते हैं। इवन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के प्रेसिडेंट आपके हालिया जो आपका लास्ट अभी एक कन्वेंशन या वो आपने जलसा किया, उसमें शोएब भट्ट साहब ने अपनी को बताया कि वो आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन वो उनका ये भी कहना था कि ये चैम्बर का भी काम नहीं है। तो अगर ये सारे इदारे इस बात को मुनहरफ हैं एक चीज से, तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो अपने ताई आप कुछ करके लोगों को फैसिलिटेट कर सकें? ये इसका हाल यही है कि चंदा किला से ओवर हेड ब्रिज शुरू किया जाए और ख्याली ब्रिज के साथ मिलाया जाए। ये अरबों का काम है, ये कोई सोसाइटी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट कर सकती है। ये NHA से मामला मज़ीद ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाएंगे, हमारे बस में ये बात नहीं है। तमाम सोसाइटियां मिलके कोई प्रोजेक्ट, कोई बजट ऐसा जनरेट करके अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती? कोई ऐसा अंडरपास, कोई ऐसा पेडेस्ट्रियन ब्रिज ही बना दें, कम से कम गाड़ियां नहीं तो वो लोग जो यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पे जाते हैं कुछ छोटी चीजों पे, उनको वो यहाँ से क्रॉस कर सकें। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव लॉ के मुताबिक हम अपनी सोसाइटी की बाउंड्री वाल के बाहर 1 रुपया भी खर्च करने के कानूनन मजाज नहीं है। पहली बात तो ये है। नंबर 2, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ किसी का ज़ाती मफाद नहीं है। जिन सोसाइटियों के हम नाम लिए हैं वो उनकी पर्सनल है, वहाँ नफ़ा है या नुकसान है वो उनका ज़ाती है। कैनाल व्यू का, सिटी हाउसन का, वो इस साइड पे हमने बात की थी, तैयार नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको हेड करते हैं DR गुजरांवाला, रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी। एप्लीकेशन देने सारे लोग सेक्रेटरी के पास हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। आपके मद्दे मुकाबिल ग्रुप की बात करूं तो क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो जाके उनको कन्वेंस कर सके कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर डेली इस मुसीबत से झील कर अपने कामों पर पहुंचते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें टैक्सेस देते हैं किसी भी सूरत में हो। आज तक इसी चीज को देखें तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर जिस तरह आपने एक इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज किया है, आपने गैपको के साथ मिलकर यहाँ पे काम किया, आपको प्राइवेट आप बिजली फराम कर रहे हैं, चाहे वो महंगी ही है, लोग रोते भी हैं इस पे। इसी तरह का कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा फार्मूला आप कोऑपरेटिव के साथ मिलकर, NHA को साथ ऑन बोर्ड लेकर, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मिलाकर और आपकी सोसाइटीज के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन के साथ ये नहीं किया जा सकता? ये जदोजहद की जा सकती है, कभी भी मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये पूरा ब्रिज बना सकें। गलत वादा हम करते नहीं हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक, आप गलत वादे नहीं करना चाहते? नहीं, गलत कोई वादा नहीं कर सकते। ये बिजली का जो आपने फरमाया है कि ये यहाँ पे महंगी है, ये इंशाअल्लाह ताला 3-4 हफ्तों में ये मसला हल हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नादीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं सईद ताज साहब, जो कि अपना एक अच्छा हल्का अहबाब रखते हैं अदबी हलकों में भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी, और वाबडा टाउन के अंदर उनकी ज़ात के साथ जो मुंसलिक लोग हैं, मैंने उनको देखा 2-3 पीछे लास्ट जो उनके जलसे हुए वहाँ पे मैंने उनकी जो है ना उनकी अल्फाज की चाशनी को महसूस किया। तो मेरे साथ वो मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूंगा कि वाबडा टाउन के आप रहायशी हैं, वाबडा टाउन में दूसरे टाउन जो हैं उनमें आप बात करते हैं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, आपने किस तरह से इस टाउन को दूसरे टाउन से मुनफरिद किया हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे टाउन में और वाबला टाउन में एक बड़ा बेसिक फ़र्क है। हम लोग जो पिछले 20 साल से इसके कंट्रोल को संभाले हुए, हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक प्लान करते हैं। उस प्लान में ये शामिल होता है कि अगर सड़क, फॉर एग्जांपल अगर सड़कें हैं हमारी, जो हमारे एसेट्स हैं, सड़कें हैं, तो सड़क किस लेवल पे उसके क्रैक्स आएंगे तो हमने उसको रिपेयर शुरू करवा देनी।
इसी तरह बारिश का पानी जो है अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा में नहीं निकलता तो वो हमारे लिए अलार्म बज जाता है और हम उसके लिए उसकी सीवरेज के लिए उसके पंपिंग सिस्टम के लिए हम उसकी वो शुरू कर देते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट या उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब ये 2000 प्लाट जब ऑक्यूपाइड हुए थे यहाँ पे तो उस वक्त हमें महसूस हुआ कि मस्जिदें कम पड़ेंगी। वही प्लांट और जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है उससे पहले, आबादी बढ़ने से पहले हमने तमाम मस्जिदों को डबल कर दिया और दूसरी मस्जिदें भी बनवाई। और आज भी आप देखें, और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है जो आपको शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगी वो ये है कि मसाजिद का इंतज़ाम जो यहाँ पे वापडा टाउन में है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, क्योंकि मसाजिद के जो खतीब हैं या जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बेसिकली सोसाइटी के एम्प्लॉइज़ हैं और टोटल उसकी टेक केयर जो है वो मसाजिद की सोसाइटी करती है और पूरी फैसिलिटीज़ होती हैं। उसके अलावा बाकी हार्टिकल्चर है, वो देख लें आप कि बिफोर टाइम हम हर चीज़ को पहले प्लान किया होता है। हमने कभी ये नहीं किया कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई तो उसके बाद उसको रिप्लेस किया जाए। तो जो चीज़ आपने कहा कि क्या चीज़ मुमताज़ करती है वापडा टाउन को, तो वो ये है कि ये हम ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले हम उसको प्लान कर लेते हैं। ये मेजर आप किसी भी चीज़ को ख़राब होने से पहले उसको तसी उसके लिए एक प्लान रखते हैं। आपकी कुछ जेडीज़ हैं जिनको आप देखते हैं, आपके कुछ एसओपीज़ हैं, उनके मुताबिक आप टाउन को चला रहे हैं ताकि एक अच्छे तरीके से चलाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मौजूद थे इत्तेहाद ग्रुप के जी। हमारी सोसाइटी की जो पूरे मुल्क से मुनफर्द बात है वो ये है कि जितने हमारे मेंबर वोटों से जीत के आते हैं किसी को 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिलती। हम बसीयत इत्तेहाद ग्रुप के सरबरा मेरे साथी जितने हैं, जब हम बंदे चूज़ करते हैं किस किस को इलेक्शन लड़ाना है तो हम उनसे हलफ लेते हैं कि यहाँ फ्री टाइम दे सकते हैं तो इलेक्शन लड़ लें। कोई मुआवजा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई टीए नहीं। अगर किसी काम पे जाना है, सोसाइटी के लाहौर जाना है, किसी और जगह, तो अपनी गाड़ी लेके जाना है। अगर ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो इलेक्शन लड़ लो, नहीं कर सकते तो ना लड़ो। और पूरे मुल्क में मुझे कोई सोसाइटी बता दें जहाँ पे ये लोग तनख्वाहें ना लेते हों। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं, कोई मुआवजा नहीं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने वो अहवाल सुनाए उन इत्तेहाद ग्रुप के कायदीन से, उनके मेंबरान से, जो हमने उनसे बात की, उनसे बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने में मिली। जो चीज़ें आप 2-3-4 दिन से सुन रहे थे वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज का इलेक्शन का दिन है, आज फैसले का दिन है। शाम 5 बजे तक इंशाअल्लाह इसका वोट जो है ना, जो लोग कास्ट कर रहे हैं उसका इलेक्शन के प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो भी इंशाअल्लाह हम आपको सुनाएंगे। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, 3360 मर्द वोटर हैं और 800 के करीब खवातीन वोटर्स हैं। और अभी तक जो आप टाइम देख सकते हैं, अभी तक तकरीबन 1200 से 1300 वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मेंबरान वापडा टाउन जो अपना वोट कास्ट करने आए थे, चाहे वो मर्द थे या खवातीन थे। अभी मैं बात करना चाहूँगा सिक्योरिटी पे मामूर यहाँ पर जो SHO सदर थे, उनसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी वो गैर मामूली देखने को मिल रही है। यहाँ पर चूँकि रात को एक छोटा सा झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस की 2 रिजर्व लगाई गई हैं। थाना सदर जो अपनी पूरी तंदोही के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो यहाँ पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से 28 लोग जो है ना वो अंदर अपना काम कर रहे हैं, जिसमें 28 में से एक प्रेसिडेंट्स हैं जो इस सारे प्रोसेस को हेड कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक की ये टाइमिंग है। और जो है वो यहाँ पर पुलिस के जो एहलकारान हैं वो यहाँ पर बैठे अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस के एहलकार भी यहाँ पर इस सारे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसको जो है ना वो शफाफियत आ सके। इसमें वोटर जो अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और वो लोग इलेक्ट होकर यहाँ पर ऊपर हैं जिनको वोट कास्ट किया जाए। अभी मैं बात करूंगा, मेरे बैक पे मौजूद हैं जो इत्तफाक ग्रुप है उनके लोग, उनके कायदीन से, उन लोगों से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उम्मीदवार हैं, चाहे वो एमसी मेंबर के लिए कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल के लिए कर रहे हैं या सदर के लिए कर रहे हैं। जैसे ही वो मेरे पास आएंगे मैं इंशाल्लाह आपकी बात करवाता चलूँगा। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता चलूँ कि ये इलेक्शन जो कि दोनों अतराफ से जब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, चूँकि वापडा टाउन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है
اور سوسائٹی کی تمام تر SOPs کے مطابق جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو چلاتا ہے. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کا مارچ میں اعلان کیا گیا تھا, لیکن دونوں اطراف سے اپلیکیشن اور ہائرنگ اور اس کے بعد بہت ساری مطلب کورٹ میں جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے سے آگے کیا جاتا رہا. ابھی آخرکار یہ وہ لمحہ آ گیا جب یہاں پر الیکشن جو ہے وہ بالکل ہو رہا ہے. آج 22 تاریخ ہے, 22 مئی 2022 ہے. یہ 3 سال کے لیے الیکشن ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے 3 سال کے لیے اپنی انتظامیہ کو جو ہے نا یہاں پر الیکٹ کرواتے ہیں تاکہ وہ آ کے یہاں پر خدمت کر سکیں, لوگوں کے مسائل حل کر سکیں, لوگوں کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جس طرح کہ یہاں پر بجلی کا نظام ہے, جہاں پر سیوریج کا نظام ہے, جہاں پر سیکیورٹی کا نظام ہے, یہ ساری چیزیں وہ ساتھ لے کر چل سکیں. ناظرین میرے ساتھ ابھی میں اگر تھوڑا سا اپنے کیمرامین کے ساتھ پیچھے جانا چاہوں تو میری بیک کے اوپر وہ گروپ وہ مطلب موجود ہے یہاں پر, وہ کیمپ جہاں پر اتفاق گروپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم بات کرنا چاہیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ یہ وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان میں ان کے کیا مقاصد ہیں, وہ کیا یہاں پر الیکشن لڑ کے کیا لوگوں کو فائدے دیں گے, جو کس طرح کے فائدے ہوں گے, وہ دوسرے لوگوں سے کس طرح سے منفرد ہیں. ابھی میں بات کروں گا, میرے ساتھ موجود ہیں اتفاق گروپ کی طرف سے غفران صاحب ہیں جو کہ رات کے جھگڑے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا زخمی بھی ہوئے تھے. جو جب تھوڑا سا یہاں پر جھگڑا ہوا دونوں اطراف سے جب کیمپ لگانے کے لیے یہاں پر جھگڑا کیا گیا تو اس میں یہ بھی موجود تھے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غفران صاحب میں آپ سے بات کروں گا آج کے الیکشن کے لحاظ سے, کیونکہ آپ کا رات کا موقف تو لوگوں نے سن لیا کہ جس طرح آپ کے ساتھ بدماشی کی گئی یا جس طرح گنڈا گردی یہاں پر کی گئی, آپ کی طرف سے بھی اپلیکیشن چلی گئی اور دوسری سائڈ سے بھی اپلیکیشن چلی گئی. یہ چیزیں تو پولیس کے میٹر ہے, وہ دیکھیں گی. تو یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ عرصہ دراز سے اس وابڈا ٹاؤن کی رجیم کے اوپر, گروپ کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر براجمان ہیں, آپ لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے آج آئے ہیں, آپ کا کیا آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو آپ ان سے منفرد اس ٹاؤن کو چلائیں گے اور کیوں آپ الیکشن میں آئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی الیکشن وابڈا ٹاؤن کی تاریخ کے اندر الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی بھی اس طرح کا ماحول الیکشن کا دیکھا ہی نہیں ہوگا. یہاں پہ کچھ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں وہ مسلط ہو گئے ہوئے ہیں اس ٹاؤن کے اوپر, لوگوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہر قسم کی دوست داندلی کر کے وہ الیکشن ہونے ہی نہیں دیتے تھے. تو آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے, ایک خوشی کا منظر ہے کہ یہاں پہ ایک کمپٹیشن دیکھنے کو آ رہا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو کیونکہ جب ان کو اپنی سمجھ لیں کہ ان کی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر انہیں پرابلم آتا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جی بٹ صاحب نے پہلے دھمکیاں بھی دیں, پھر کل انہوں نے جناب اس کا بھرپور مظاہرہ بھی کروایا, انہوں نے ہم پہ حملہ بھی کروایا. تو ہم ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں, ہم کو ڈر کے بھاگ نہیں گئے ہیں, کھڑے ہیں جی, کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے, لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت کے بھی دکھائیں گے. مجھے بتائیے گا غفران بھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کے پاس کیا پلان ہے اپنے ٹاؤن کے لیے, اپنے ممبران کے لیے, آپ کیا کیا چیزیں لوگوں سے منفرد کریں گے جو وہ نہیں کر رہے, اگر وہ کھا رہے ہیں, وہ کرپشن کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ قبضہ گروپ ہیں, واٹس ایور, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا پلان ہے ان سے منفرد, آپ کس طرح کی فیسلٹی دیں گے ٹاؤن کو؟ لیکن جی نمبر 1 پلان ہے ہمارا, یہاں پہ الیکٹریسٹی کا بہت بڑا پرابلم ہے. الیکٹریسٹی یہاں پہ باقی شہر کے آپ ریٹس دیکھ لیں اور یہاں پہ دیکھ لیں. وابڈا ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ ہم 50 پیسے جو ہے وہ فی یونٹ پروفٹ رکھتے ہیں اور سٹل پھر بھی یہ ان کے کوٹ کرنے کے مطابق ہے. ہم لوگوں نے ان کے فیکٹس اینڈ فگرز دیے, ان کو ساری بیلنس شیٹیں دی, یہ 4 روپے سے لے کے 10 روپے تک پروفٹ رکھ کے تو رہائشیوں کو آگے یونٹ سیل کریں گیپکو سے بلک میں خرید کے. تو سب سے پہلے تو جی ہم لوگ جو وابڈا ٹاؤن کے رہائشیوں کو جیت کے جو خوشی سنائیں گے انشاءاللہ, وہ ہم لوگ اس ٹیرف کو جو باقی ہمارا سارے شہر کے اندر گیپکو کا چل رہا ہے ٹیرف, ہم لوگ اس کے ایکول کروائیں گے. سب سے پہلا منشور. مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ وابڈا ٹاؤن کے رہائشیوں کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے, وہ پرابلم یو ٹرن ہے, آپ کیا کریں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل یو ٹرن کے اوپر جو ہے وہ NHA کے ساتھ بھی ہم لوگ بالکل کوآرڈینیٹ کریں گے. پرابلم ایک سویئر قسم کا ہے. دوسری یہاں پہ سوسائٹیز ہیں ہمارے بالکل دائیں طرف کینال ویو ہے, سٹی ہاؤسنگ ہے, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ہم کوئی اوور ہیڈ برج کا یا ہم لوگ کوئی انڈر پاس کا ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے منشور کے اندر ہے. ہم لوگ اس کے اوپر بالکل پورا اتریں گے اور رہائشیوں کو اس چیز کی امید بھی دلاتے ہیں اور یقین بھی دلاتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ کاسٹ کریں. ہم لوگ ان کے اس جو منشور لے کے چل رہے ہیں اس کو پورا کریں گے, خاص طور پہ یہ یو ٹرن والا معاملہ پورا. اچھا غفران بھائی, چونکہ آپ ان کے مرکزی قائدین, کیونکہ فرنٹ فٹ پہ آپ آتے ہیں, ہر چیز کو ڈیل کرتے ہیں, میں آپ سے ایک اور کویسچن کروں گا
کہ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یو ٹرن کا مسئلہ دوسری سوسائٹیز کے ساتھ مل کر کریں گے، لیکن آپ کا کوآپریٹو لا اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ سوسائٹی سے باہر کوئی بھی ایکسپینڈ اپنے ایسے جو آپ کے پاس فنڈز ہیں وہ آپ ان کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ دیکھیں جی، کوآپریٹو کے لاز تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ کوآپریٹو کے لاز جو ہیں وہ اور بھی یہاں پہ جو بھی ناجائز کام ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں۔ یہاں فار ایگزامپل اس ٹائم کے اوپر یہاں پہ سیکٹری کا الیکشن ہو رہا ہے، سیکٹری کی سیٹ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے، بائی لاز کے اندر اور ان کے الیکشن رولز کے اندر بالکل کنٹراڈکٹری ہے، اور ابھی بھی وہ سٹل پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ وہ اب کوئی بھی فیصلہ ہو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا سیٹ کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، ایک رول یہ کہتا ہے اور ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ کا الیکشن ہو سکتا ہے، کنٹراڈکٹری ہیں۔ تو بائی لاز آپ کوآپریٹو کے کسی اور سوسائٹی کے اندر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کنٹراڈکٹری، آئی تھنک آپ بات کر رہے ہیں جنرل سیکرٹری کی، تو کیا دوسری کوآپریٹو سوسائٹیز کے اندر کوئی ایسی ایگزامپل ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں لاہور وابڈا ٹاؤن کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ریسنٹ اس طرح کا ہوا تھا، معاملہ ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی کیس وغیرہ ہوا تھا، تو اس کی ایک پراپر ایلیجبلٹی ہے سیکٹری کی۔ وہاں پہ سیکرٹری کی سیٹ جو ہے ایم سی ممبر سے آتی ہے، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جناب پہلے الیکشن ہوتا ہے، جو مینجمنٹ کمیٹی ون کرتی ہے وہ الیکٹ کرتی ہے سیکٹری کو۔ سیکٹری کا ایک کرائیٹیریا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے، جیسے پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، فائنانس سیکرٹری ہے، وہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے ایگزیکٹو ممبر، اس کے لیے ایک پراپر کرائیٹیریا ہے۔ لیکن یہاں پہ شالیمار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں پر ڈی سی کالونی ہے، قائد اعظم ٹون ہے، یہاں پہ ایسی پریکٹس موجود نہیں ہے کہ ہے کہیں؟ نہیں، یہاں پہ اس ٹائم پہ ابھی فی الحال کوئی پریکٹس نہیں ہے، لوگوں کو اتنا شعور ہی نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے، لوگ قانون پہ عمل کرنے کے پابند ہی نہیں ہے، یہاں پہ اتنی روایت ہی نہیں پڑی ہوئی۔ ہم لوگ تو دیکھیں، ہم لوگ قانونی دلیل سے بات کرتے ہیں جو کہ عقلی دلیل کو بھی ثابت کرے، لا کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو، اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، اور ہار جیت تو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ تو گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو سر کے بل۔ مجھے بتائیے گا پولیس نے آج جو انتظامات کیے ہیں آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ ہاں جی بالکل، پولیس کے ماشاءاللہ بہت بہترین انتظامات ہیں، اور یہاں پہ آج کافی اچھے انتظامات دیکھنے کو آئے ہیں، تو ہم اس بارے میں جو ہے وہ پولیس کا بھی نہایت مشکور ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اس سارے الیکشن پروسیس کو بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے رات کو جو اپلیکیشن دی اس کا فردر پروسیس چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ جب الیکشن ہو جائے یہی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج؟ نہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایونٹ، بٹ قانون اپنا پھر راستہ تو بناتا ہی ہے، وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری قانونی ٹیم اور سارے جو جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے لاہ عمل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ غفران بھائی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی محمد یونس انصاری صاحب جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ وابڈا ٹاؤن کی ایگزیکٹو ممبر کے لیے یہاں پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ممبران کو کیا پیغام دیں گے، کیا ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ جی آپ مجھے ووٹ کاسٹ کریں، میں آپ کو جب اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے تو میں یہ چیزیں آپ کے لیے کروں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ممبران سوسائٹی کے لیے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پانی کا پریشر نہیں ہے، نئے ٹیوب ویل لگائیں گے، اور اپنے نوجوان جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں میں، چونکہ ہمارا یہاں ایلیٹ فورس رہتی ہے، سارے بچے گھروں میں اے سی میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں اے سی نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان نونہالوں کے لیے کلاس روموں میں اے سی کا بندوبست کریں۔ اس کے علاوہ ہم اسکول کے بچوں کی فیسوں میں 10% کمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تمام مساجد اور اسکولوں کے اندر سولر سسٹم کے نفاذ کے ذریعے اس نظام کو پورا کریں گے، اور یہ سہولت ہم اپنے ممبران کو دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی احسان اللہ صاحب جو کہ ایک ایکس گجرانوالہ کے منسٹر ہیں، ان کے برخوردار ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بھی اتفاق گروپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ چیئرمین ہیں اتفاق گروپ کے، میں ان سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی جڑیں شہر کے اندر ہیں، آپ کی جماعت، آپ نے بھی خود بھی اس شہر کے اندر سیاست کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو وابڈا ٹاؤن میں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا آپ آ کے اگر آپ کا گروپ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ کیا اس میں سے فرق لے کر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا مہربان ہے۔ درود پاک پڑھتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دیکھیں، اپنا بات یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے یہ 20 سال تک یہاں موجود رہی ہے، 20 سال تک اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ 20 سال کے بعد ہم لوگ یہ محسوس کر کے یہ پولیٹکس میں اپنا شرکت کی
यहाँ पानी का मसला है, पानी जो है वो दूसरी मंजिल पे नहीं जाता। फिर यू टर्न है, हमारे जो मेहमान आते हैं या जब हमने एग्जिट करना होता है अपना वापडा टाउन से शहर की तरफ जाना होता है तो घंटा घंटा हम वहाँ खड़े रहते हैं। ये सारे मैटर्स जो है ना ये इंटरेस्ट के हैं, तो मौजूदा क़यादत तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। अब आप ये देख रहे हैं पीछे कि ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक अपना लैंडस्केप है, अपना ग्रीन बेल्ट है। उस ग्रीन बेल्ट में फूल लगाने के बजाय हमने एक हेज लगा दी है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इन लोगों के पास कोई दूर अंदेशी नहीं है, फार साइटनेस नहीं है, ये आगे की बात नहीं देख सकते, नहीं सोच सकते। एक पार्क है, अज़रा कानून ये पार्क के अंदर कोई शय नहीं बना सके मंजूरी के बगैर। इन्होंने पार्क की सारी ब्यूटी तबाह कर दी है। वहाँ एक मीनार खड़ा करके उसको मोनूमेंट बनाया जो मोनूमेंट बना दिया। उसकी एजीएम से मंजूरी नहीं ली उन्होंने? जी एजीएम की मंजूरी तो ली है, एजीएम पे तो जो भी कहेंगे ये मंजूरी हो जाएगी। असल में उसमें जो खिलाफ कानून बात है वो भी एजीएम में अक्सरियत के बलबूते पे मंजूर हो जाएगी। लेकिन आप एजीएम में नहीं है? जी हम हैं ना, हमारा इतराज़। मुखालफत क्यों नहीं करते? नहीं हमने की है, ये मैं बोलने का मौका नहीं देते और फौरन कहते हैं आए जी खाना खाएं और ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कानून के मुताबिक एजीएम होती है, ये फैसला रजिस्ट्रार करता है कि ये कानून के मुताबिक है, इसकी मंजूरी देते हैं या नहीं देते, ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना, ये कानूनी है, ये होना है। तो वो तो मंजूरी हुई नहीं, तो ये कहेंगे कि ये सारा जो हो गया चलें लीव इट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो कोऑपरेटिव लॉ है उसके मुताबिक जो चीज़ आप एजीएम में पास कर देते हैं उसको सिर्फ जो डीआर होता है आपका उसको वेट करता है, वो उसको उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो अगर ये अपना एजीएम में ये मंजूरी दे दी जाए कि वापडा टाउन को बेच दो तो वापडा टाउन बिक जाएगा। आप लोग सब उसी में होंगे ना, मेंबरान भी, आप उसके रायशी। हम इत्तेजाज करेंगे इस बात पे और हमारा इत्तेजाज है, अभी तक हमारा इत्तेजाज है। ये जो भी कानूनी या गैर कानूनी फैसला होगा एजीएम में उसकी जी अप्रूवल है वो रजिस्ट्रार देगा, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव देगा। अगर वो रजिस्ट्रार नहीं आई इट्स इलीगल, इट्स इलीगल, इट्स इलीगल। उसको वेट नहीं किया डीआर ने या रजिस्ट्रार ने? नेव पड़ा हुआ है। यानी आपका सब गैर कानूनी काम हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव के लॉ हैं, लॉ उस वक्त तक है जब उसको इम्प्लीमेंट करें अपर अथॉरिटीज। जब अपर अथॉरिटीज उसको अप्रूव नहीं करती तो क्या ये गैर कानूनी नहीं होगा? लेकिन आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, रिट भी कर सकते हैं। देखें ये जो सोसाइटी है ना ये हमें रिकॉर्ड नहीं देती, ये कहाँ खर्च कर रही है, क्या खर्च कर रही है, कितना खर्च हो रही है। मैनोमेट बना ना, इसका ऑडिट नहीं हुआ? जी ऑडिट जो है वो जैली और फर्जी ऑडिट, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। हाँ जी। अब हमने कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 4 दरखास्तें दी हुई हैं कि हमें इनसे रिकॉर्ड दिलवाया जाए। वाई डोंट प्रोवाइड द अपना लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैटर्स। आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं। कौन से सेक्रेटरी के पास? तो हमने के पास दी हुई है ना। तो क्या कहता है सेक्रेटरी? वाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये अपना जो एक माफिया है और ये माफिया ऊपर तक चला हुआ है। इनके रिलेशन है उनसे? रिलेशन है या अप्रोच करते हैं या मैनेजमेंट कर लेते हैं। आप क्या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अंडर टेबल तो नहीं लेता? ये आपने बड़ी अपना अब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है ना डीआर गुजरांवाला, मलक इशफाक शाहिद 100% लेता है। क्या चीज? अंडर द टेबल। क्या एविडेंस है? ये आप में से पूछे। अभी ये हम बैठे हुए हैं, आपके पास तो यहाँ पे जेआर है, अयूब साहब हैं जो आपको टैकल कर रहे हैं। आप ऐसे करें ना, ये इलेक्शन का दिन गुजर जाए, हमारे पास सिटिंग रख लें, हम आपको प्रूव कर दें। हम आपके साथ तैयार हैं बैठने के लिए। टाइम, वक्त, वेन्यू आपने बताना। ठीक है। ये जो आपने पूछा ना कि इसके पास एप्लीकेशन, उसके पास एप्लीकेशन, जब एजीएम होती है ना, एजीएम को जो साहब हेड करने के लिए आते हैं वो पहले मैनेज हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। होना तो ये चाहिए जब एजेंडा पेश हो तो उसका लेफ्ट राइट हाँ ना में लेना चाहिए, लेकिन वो उससे इस दफ़ा हमने इतनी इस्तदा की मेरा भाई, जो ना वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं, हाँ वाले कम हैं। आप कैसे इसको प्रूव? नहीं, दो चीजें हैं। अगर आपका वो उसको वेट कर जाता है, उनकी चीज को इंडोज कर जाता है, इट्स मीन कि वो मेजोरिटी रखते हैं। मेजोरिटी नहीं रखते, गिनती नहीं करवाते। मेरे भाई काउंटिंग करवाएं तो मेजोरिटी का पता चले ना। इस दफा सारी बात एजीएम में इनके खिलाफ गई, उसने रिपोर्ट इनके हक में 80% इनके खिलाफ थी, लेकिन आप उस रिपोर्ट के खिलाफ गए हैं? गए हैं। किसके पास?
किसके पास सेक्रेटरी के पास भी गए हैं, हम उसके पास भी गए हैं, रजिस्ट्रार के पास भी गए हैं, सेक्रेटरी ने क्या कहा? वो पेंडिंग है। नहीं, किसी को रिमांड नहीं किया? क्या कहता है सेक्रेटरी? कोई तो डिसीजन होगा। मलक इशफाक के पास गए थे, उसने कहा जी मैंने रिपोर्ट भेज दी है, मैंने सेक्रेटरी साहब। इन्होंने तो रिपोर्ट ही करनी है ना, सेक्रेटरी का डिसीजन क्या है? भाई यही तो बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैनेज हो जाते हैं या मैनेज कर लेते हैं। यानी सेक्रेटरी भी मैनेज हो जाता है? सेक्रेटरी की मैं बात नहीं करता, सेक्रेटरी एक बढ़िया हायर अथॉरिटी। किस रजिस्ट्रार के पास आपने एप्लीकेशन दी थी, पिछले वाले या अभी वाले? साहब को, वो तो घर चले गए हैं। तो वो ये हमारा कोई कसूर जी बहुत शुक्रिया। आपका इसलिए शुक्र करता हूँ, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट कोऑपरेटिव्स, मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ। जी सर, थैंक यू। जी मेरे साथ मौजूद थे इत्तफाक ग्रुप के कायदीन भी थे, मेरे साथ उनके उम्मीदवारान भी थे। मैंने बात सुनी इत्तफाक ग्रुप की भी, इत्तेहाद ग्रुप की भी। दोनों ग्रुप्स की जो बातें थी वो आपके सामने थी। मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की। मैंने एक ग्रुप से पूछा, आप बरसरे इक्तदार 20 साल से हैं, आपने क्या किया? और इनसे पूछा आप आएंगे तो आप क्या करेंगे? दोनों के पास क्या है, किस तरह की बातें हैं। और मेरे साथ मौजूद है SHO सदर, उनसे मैं पूछूंगा कि दोनों साइड के लोग बड़ा एतमाद कर रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आपने किस तरह की ऐसी फील्डिंग लगाई है कि लोग बड़ा सेटिस्फाइड हैं आप पे? थैंक यू भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये लोगों का एतमाद ही है, यहाँ पे हमसे प्यार करते हैं। बाकी आपको पता ही है हम प्रोफेशनल हैं और अपना सारा का सारा काम बड़ा प्रोफेशनली करते हैं। कितने लोग तैनात हैं? हम तकरीबन इस वक्त 120 के लगभग पुलिस वाले हैं, जिनमें एलीट्स भी है, जिनमें एंटी राइट यूनिट्स के लोग भी हैं और हम अपने थाने के लोग भी हैं। और इसके अलावा प्लेन क्लास में भी लोग हैं जो प्लेन में चीज़ों को देख रहे हैं कि कोई किसी किस्म की कोई अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो जाए। रात को एक छोटी सी बदमज़गी हुई जिसकी वजह से जो हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं पुलिस एहलकारान। 5 बजे के बाद चूंकि पोलिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद का आपके पास क्या प्लान है? आप किस तरह से सिक्योर करेंगे इस पोलिंग स्टेशन को? आप इनको किस तरह से इस पोलिंग स्टेशन से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करेंगे? क्या प्लान है आपके पास? आप देख रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी सारी ARU के यूनिट्स हैं जो कि पोलिंग स्टेशन को सिक्योर करेंगे। और मेरे पास इस वक्त 4 एलीट के दस्ते हैं जो जूं ही पोलिंग क्लोज हो जाएगी, इलेक्टोरल जो पोलिंग का काम है वो रुक जाएगा, तो ये गश्त करना शुरू कर देंगे, ये पेट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे इसके पोलिंग स्टेशन के गिरदोरवा में। ये उस वक्त तक गश्त करते रहेंगे जब तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है, जो लूजिंग कैंडिडेट है, वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई। ये थे मेरे साथ मौजूद SHO सदर अदनान साहब, जो कि जिन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग से इस पुलिस के दस्तों को यहाँ पर तैनात किया, डिप्यूट किया, क्योंकि इनके साथ यहाँ पर थाने के साथ साथ जो है वो रिजर्व की पुलिस भी मौजूद है जो कि सिविल पुलिस लाइन से मंगवाई गई है। क्योंकि रात को एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी गैर मामूली है। एलीट 4 के दस्ते भी यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर मंगवाई गई हैं और यहाँ पे खड़ी की गई हैं ताकि जब इलेक्शन का वक्त खत्म हो जाए तो उसके बाद जो टाइम शुरू होगा जो कि रिजल्ट की तरफ जाएगा तो कोई ऐसी बदमज़गी ना हो। क्योंकि जो भी इलेक्शन में 2 लोग हैं, दोनों में से एक ने हारना है और एक ने जीतना है। जो जीतेगा वो खुशी मनाएगा और बहुत से इंतशार पसंद लोग दूसरी साइड पे होते हैं जो कि लोगों को किसी न किसी तरफ जाने पर मजबूर करते हैं। नाजरीन, अभी तक आज की वापडा टाउन की जो अपडेट थी हमने आपको दी। यहाँ पर दोनों ग्रुपों को के कायदीन को हमने आपको सुनवाया। हमने पुलिस की, लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज की यहाँ पर डेपुटेशन, यहाँ पर डिप्यूट किए गए थे, उनकी सिक्योरिटी को आपको दिखाया। हमने अंदर के अहवाल आपको बताए, कोऑपरेटिव के बारे में बताया कि कितने लोग यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अंदर पोलिंग का अमला जो क्या कर रहा है, इसके अलावा पोलिंग एजेंट्स कितने मौजूद हैं, कितने पोलिंग बूथ मौजूद हैं, कितने पोलिंग बूथ में औरतें अपना वोट कास्ट करेंगी, कितने में मर्द पोलिंग बूथ जहाँ पर अपना उन बूथ में अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी जो हालात हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, टाइम बिल्कुल थोड़ा है। जब भी जैसे ही यहाँ पर पोलिंग खत्म होगी, पोलिंग का सिलसिला, वोट कास्टिंग का सिलसिला खत्म होगा, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि टोटल टर्नओवर कितना रहा और ये कहाँ तक अभी तक कितनी टाइम के बाद इसका रिजल्ट आना बाकी है। इसके साथ मुझे मेरी टीम में शामिल